Good evening and welcome, friends, parents, and fellow educators. Thank you very much for joining us. So, before we start, on behalf of everyone at Sundarji's Global Academia and all our group of institute, I would like to pay my respect and salute all frontline workers serving our country under this unprecedented crisis. I special thanks to all our government and our minister for his vision and guiding us in this time. Before we start today's seminar, we all know the topic is very important to us and very close to our heart. That is, how do we deal with stress and how do we see that this stress is not passed on to our children. But before that, I would like to go through a few ground rules for this webinar. We will have this webinar recorded and it will be up on our Facebook. We will answer all your questions at the end of this 40-minute session. We will also try to take in as many as questions as possible in two languages, that is Hindi and Marathi. We will also have a mail directory who have sent us the email ID with whatever that doctor and his better half have told us in this webinar. So today, friends, I have the pleasure of introducing Dr. Godbole and his better half, Dr. Ashwini Godbole. Dr. Godbole is a well-known person in the city of Pune, but people who have joined us across the globe, let me just give you a brief introduction. He is a developmental pediatrician and he's got his own clinic established 20 years back by the name of Chiranjeev Child Development Clinic. He also is the HOD of Small Steps Morris Autism Child Development Center at the Dinanath Mangeshkar Hospital and Research Center. He is trained in child development in Germany. He has written more than about 200 articles, published various research papers at the national and international level, and of course, along with his better half, he has authored 6 books on parenting. Coming to Ashwini ma'am, she's also a very well-known name in our city of Pune. She has done her postgraduate diploma in child and adolescent psychology. She with Sir manages also the Chiranjeev Clinic. She deals with a lot of counseling sessions for parents and children, and most important part is that she guides the entire diet program, which is very much of the art. She, along with Sir, has co-authored so many books. And ma'am, we are fortunate that you are being a part of this webinar series. It's a 4-part series. Today is part 1 on for Sundarji's Global Academia. Both Sir and ma'am has been associated as a faculty member at our group of institute. And today it's a pleasure to start the series with them. Let me tell you, friends, going through a few statistics, and I found out that 7 out of every 10 person is under anxiety and stress. We found out that every 8 women out of 10 could not get sleep. The family is concerned about the future, what is going to happen to our jobs, how we are going to see through this year. And what better than to have Sir explaining us today that how could we deal with this lockdown period, which is so thrust upon us? How could we make our lives more comfortable? How can we bring back laughter in our lives? How can we make it calm and compose this situation? And how can we make it turn to our advantage? Over to you, Sir. Good evening, all, and welcome all. I hope I'm audible to everybody. I'll just will start on this important topic: stress. Everybody is saying that stress is coming up, and I'm very sure to say one very important thing by this first time that okay, this particular pandemic is very unusual in your life. It is probably first time, and I hope it is last time for us to go through. Always there is one thing I wanted to remember the beginning, that everything which starts has its end. So ये तो कभी ना कभी जाने वाली ही है. तो हम कितना इस छोटी ड्यूरेशन में कितना डील करने वाले हैं. हम सबके 100 बरस की लाइफ में ये 100 दिन ज्यादा नहीं है, ये ऐसे ही गुजरने वाले.
तो ये पहला पॉइंट लेके हम आगे जाएंगे। और ये करते वक्त हम सब जब पेरेंट्स है, हम जब अपने बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, हम एज अ बच्चा अपने पेरेंट्स को डील करें, ग्रैंड पेरेंट्स को, तो ये सब हम कैसे कर पाएंगे, इसके ऊपर आज से हम कुछ काम करेंगे। आई होप यू विल understand what I'm saying and enjoy what I'm going to try to tell you. Now, to begin with, let's see. I wanted to start with a story. ऐसा मान लो कि आप और हम सब एक सी शोर पे है। मुझे पता है लॉकडाउन में ये सब मैं बोल रहा हूँ, बट लेट्स टेक आवर सेल्फ ऑन अ गुड राइड सो दैट कम से कम आज मेंटली तो हमें अच्छा लगेगा कि तो हम सी शोर पे आराम से शरबत पी रहे एंड इट्स अ वेरी सनी डे, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल अराउंड एंड सडनली you find that a shark is coming towards you. What will happen? You'll get alarmed. Okay. Once you get alarmed and you are now frightened, अभी मेरा क्या होगा? तो जब हम मेरा क्या होगा तो उसके दो रिजल्ट्स आने हैं। पहला, हेलो, हम भागने की कोशिश करेंगे, विल स्टार्ट रनिंग अराउंड, और विल ट्राई टू फाइट विद द शार्क। आई डोंट थिंक विल बी these are the only two options what we say, either we will flight or we will fight। और ये करते वक्त अगर ये दोनों हम चालू रखेंगे तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है? एग्जॉस्ट होने वाले। तो ये जो प्रोसेस है फ्रॉम अलार्म, फाइट और फ्लाइट एंड एग्जॉस्टेड, ये सब क्या चल रहा है, ये कहां पे चल रहा है? ये अपने दिमाग में चल रहा है। इट इज वर्किंग इन आवर ब्रेन एंड आवर ब्रेन इज गेटिंग ऑल दिस स्टिमुलस टू द बॉडी एंड वी वर्क ऑन दैट। तो इसमें ये जो अलार्मिंग होना है, फ्लाइट एंड फाइट है एंड अल्टीमेटली गेटिंग एग्जॉस्टेड, ये सब टुगेदर इज व्हाट वी कॉल स्ट्रेस। सो व्हाट इज स्ट्रेस? It is our response to a real or perceived threat that disturbs our physical, mental और emotional stability। मतलब क्या है? हमारे दिमाग में जो आता रहता है, जो हमारा थ्रेट लग रही है, अभी आज फॉर एग्जांपल हमें कोरोना से थ्रेट है, और ये थ्रेट और उसकी कोरोना की थ्रेट के ऊपर का जो उसके ऊपर जो मीडिया एंड इंफॉर्मेशन उसकी भी थ्रेट है, ये सब हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डिस्टर्ब कर रहा है एंड ये सब हम स्ट्रेस बोलते हैं। So are everybody is under stress? Everybody is under stress. Right from a very small child right up to prime ministers and presidents. Everybody is under stress. So stress is a very good response. I'm saying very good because I wanted to know it over the time. ये करते वक्त हमें मुझे समझना है कि आप और हम सब कैसे स्ट्रेस मेजर कर सकते हैं। So knowing our stress is my second challenge. Now for this, I request all the attendees to be prepared with a questionnaire which is coming to you. And who is the best person to do it is obviously my better half Ashwini is going to give you a very small questionnaire. आपको ये क्वेश्चन कैसी देनी की है, कैसी करेंगे, अश्विनी विल गाइड यू टुगेदर। सो नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस पार्ट, पहले हमने स्ट्रेस क्या है समझ लिया, अब ये स्ट्रेस कितना है, ये हाउ मच इट इज, वी आर गोइंग टू find out and question starts for you. First, thanks Masrat ma'am for arranging this conference, which is a really important topic of stress in this COVID-19 situation. And I also thank all the parents who have participated for this webinar. So first thing is whether you are the parent of a special child or whether it's a normal bacha, stress is stress. Okay, so let's try and make an effort to know your stress, because then you will understand whether it is less, moderate or more. So in this questionnaire, we will be flashing 10 questions one by one. So, on a paper with a pen or on your mobile, please score the option that fits your present state on the paper. Especially this present state means last 1 month. Okay. So इसके लिए हम option देंगे. It's just like MCQ that nowadays children face the entrance exam. So the options are never, that is 0, occasionally is 1, sometimes is 2, fairly often is 3, very often is 4. So if how often do you feel stressed? If somebody feels it never, he can put 0. If somebody feels it is more often, that is fairly often, the person can put as 3. And somebody can put it as 2 if it is sometimes. This way the whole questionnaire will go. At the end, you are supposed to add all the option numbers, that is score, and then we will discuss on it. So let's start with the first question. In the last month, how often have you been upset because of something
that have happened unexpectedly. तो फॉर सम पेरेंट्स आई एम ट्रांसलेटिंग इट इन हिंदी. सो पिछले महीने में आप कितनी बार अनकही चीजों की वजह से अपसेट हुए हैं. तो प्लीज सिलेक्ट द ऑप्शन आउट ऑफ द 5 गिवन. ओके, and put the score, question number 1 and the score. Let's go to the next question. Everybody is okay? We are going to go a bit quick so that we can discuss on this. Just few raise the hand. Yeah, got it. Next question. Yes. So the next question is, how often have you felt unable to control the important things in your life? तो आपके जीवन की महत्वपूर्ण चीजों का आप कंट्रोल नहीं यानी नियंत्रण नहीं कर पा रहे, ऐसे कितनी बार आपको लगा? सो सिलेक्ट द चॉइस आउट ऑफ 0 to 4 and put the score. Let's go to the third question. How often have you felt nervous and stressed? So that means आप कितनी बार nervous या stressed ऐसा महसूस कर चुके हो लास्ट मंथ में? प्लीज पुट द स्कोर. क्वेश्चन नंबर 4. How often have you felt lack of confidence about your ability to handle your personal problems? So that means आपके जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए वो कम पड़ रहा है, ये आपको कितनी बार लगा? Please put the score. Now let's go to question number 5. How often have you felt that things were not going your way? That means कितनी बार आपको ऐसा लगा कि सब चीजें आपकी मर्जी से आपको जैसे चाहिए वैसे तो नहीं रही थी. So for question 5, put the score. Let's go to question 6. Let's go to question 6. How often have you felt unable to cope with all the things that you had to do? That means जो चीजें आपको करने कर पा रही है उनमें से आपको बहुत करना पड़ रहा है, मगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ऐसे कितने बार लगा आपको? Now put the score. Let's go to question 7. How often have you been unable to control the irritations in your life? आपको जो भी इरिटेशन हो रहे हैं उनकी वजह से कितनी बार वो इरिटेशन हम अब नियंत्रित कर नहीं पा रहे ऐसा लग रहा है? Let's go to question number 8. Put the score for the 7. I hope. How often have you felt you are not on top of things? अब जो भी चीजें आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा आपको अगर लग रहा है वो कितनी बार लग रहा है, इसका स्कोर पुट अप कीजिए. Now put the score. Let's go to the question number 9. How often have you felt angry because the things were for the things that were outside of your control? आपके नियंत्रण के बाहर जो चीजें हैं जैसे कि लॉकडाउन पीरियड, द होल थिंग्स आर आउट ऑफ योर कंट्रोल. सो उन चीजों से आप कितनी बार एंग्री हुए? ओके, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इसके लिए स्कोर पुट अप कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 के सामने. Let's go to question number 10. How often have you felt the difficulties were piling up so high that you could not overcome them? समस्याएं इतनी इकट्ठा हो रही है कि जो आप टैकल करने में बहुत दिक्कत आ रही है और उनकी वजह से यू आर फाइंडिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. तो इसकी फ्रीक्वेंसी को आप स्कोर कीजिए, यानी कि कभी नहीं, ऑकेजनली, समटाइम्स, फेयरली ऑफन या very often. This finishes our questionnaire. All the 10 questions are now over. Now for each question, you have put up the score. Let's add the score. Okay? हाँ, आपको 10 सेकंड देने वाले. हाँ, कुछ तो हम काम करने को बोल रहे हैं शाम को अभी, बाकी Yeah. कुछ ना करते हुए तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स हो जाए. हर टाइम बच्चे ने क्यों करना है मैथमेटिक्स, हम भी थोड़ा सा ऐड करेंगे. So somebody raise the hands, those who have done. Yeah. I can see some of the hands. Yeah, very good. हाँ, So if you have done the total score, let's go to the, thank you. So can we go to the next slide? एक मिनट. Yeah, I think we are getting the chat messages also that they are Yeah, getting it. yeah, I yeah. think we will go ahead for the count. So when you have scored all the things, the total score that you have got can be put up in this way. So those who have got the score between 0 to 4, they are in the green zone. Those who have got the score between 4 to 20, they are in the blue zone.
And those who have got to score more than 20, be aware, very careful, be alert. You are in more than 20 zone. Okay. So what is the meaning of these scores? Sir will explain about all the scores. Let's go आप ahead. आई थिंक आई होप दैट आप सबने अपना अपना स्कोर काउंट किया होगा. कुछ लोग लेस देन 4 में हो गए, कुछ लोग 4 से 20 में हो गए, कुछ लोग 20 से 40 में हो गए. इसका मतलब क्या है? तो सबका मतलब अच्छा ही है, कुछ चिंता मत करो. बट क्या कर सकते हैं हम? एक यर्क डॉटसन, ये दो लोग ऐसे बंदे हैं जिन्होंने बहुत कुछ काम किया है और उन्होंने देखा है कि हम जितना ताण यानी स्ट्रेस लेते हैं उसका अपने रोज के काम पे, अपने परफॉर्मेंस पे क्या असर होता है. फॉर एग्जाम्पल, जो स्कोरिंग लेस देन 4, दे आर इन द यू स्ट्रेस. इन लोगों को स्ट्रेस का कुछ आज टेंशन ही नहीं है, उसका फर्क ही नहीं पड़ रहा है. तो उनके परफॉर्मेंस पे उसको दे आर नॉट हैविंग अ गुड स्ट्रेस अबाउट एट ऑल. परफॉर्मेंस के साथ क्या रिश्ता है, थोड़ा आगे जाके देखते हैं. एक बहुत बड़ा ग्रुप आने वाला है जिनका स्कोर होने वाला है 4 से 20 के बीच में. दे आर द पीपल हु आर हैविंग ऑप्टिमल स्ट्रेस, यानी मतलब कभी कभी स्ट्रेस भी अच्छा होता है. वो मुझे एड याद आ रही, कभी कभी दाग दाग भी अच्छे होते हैं, वैसे स्ट्रेस भी अच्छा होता है. इसका मतलब क्या है? जब स्ट्रेस रहता है ना तभी हम ज्यादा अच्छा काम करते हैं. ऐसा बोला जाता है कि अगर एक मैराथन रनर है और एक दूसरा एक नॉर्मल रनर है और उसके पीछे एक कुत्ता लग जाता है, तो जो कुत्ता पीछे लगने से दौड़ेगा वो मैराथन रनर से ज्यादा अच्छी तरह से दौड़ेगा. इसका मतलब जब थोड़ा होता है तब वो ऑप्टिमल स्ट्रेस रहता है और ये हमारे लिए जरूर चाहिए. तो जो लोग 4 से 20 के बीच में, दे शुड कॉन्ग्रेचुलेट देमसेल्फ, दे शुड अप्रिशिएट देयर स्ट्रेस लेवल. बट इसके आगे जाके देयर आर सम ऑफ अस फॉर गेटिंग स्ट्रेस मोर देन दिस, एंड दैट इज डिस्ट्रेस. सो 20 के ऊपर जिनको स्ट्रेस आ रहा है, दैट डिस्ट्रेस. अभी मैं ये यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस दोनों को गलत बोल रहा, क्यों बोल रहा हूँ? तो यूस्ट्रेस का मतलब है हमें कुछ ताण ही नहीं है, स्ट्रेस ही नहीं है, हम बोर है, स्लीपी है, सोते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं और हमारे से आगे कुछ होने वाला नहीं है, और इस हम अपने बच्चों के साथ ज्यादा एक्टिव भी नहीं रह पाएंगे. ये यूस्ट्रेस का और ऑप्टिमल स्ट्रेस का जो जॉइंट है, वहां पे हम अलर्ट तो हो जाएंगे, टेंशन रहेगा शायद. तो ये आप ये लेवल पे 4 से 9 के बीच में आप रहोगे जहाँ पे अटेंशन इंटरेस्ट बहुत सारा है. ऑप्टिमल स्ट्रेस में हम फोकस्ड रहते हैं, हमारा एनर्जी लेवल, अरे कुछ दिख रहा है आपको स्लाइड? हाँ. तो Yes. हमारा फोकस और एनर्जी अच्छा रहता है, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग टू अचीव इन लाइफ. तो थोड़ा तो स्ट्रेस बनता ही है, तो बनने ही वाला है, बट उसको हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हम अच्छा काम कर पाएंगे, सक्सेस मिलेगा. यही चीज अपने बच्चों के लिए भी ट्रू है. तो बच्चों को अपने हाल पे छोड़ दिया वो भी गलत है. दे लैंड अप इन दैट बोर्डम एंड स्लीपीनेस, और बच्चों के दिमाग पे ऊपर चढ़े रहेंगे तो विल लैंड अप इन अ डिस्ट्रेस. वहां पे एग्जॉशन होगा. और ये ध्यान में रखो, जितना हम स्ट्रेस लेने वाले उतना हम बीमार पड़ने की आशंका है, हम फटीग होने वाले हैं. तो हमें अगर जो पैंडेमिक है उससे बचना है तो पहला दिमाग में आज घर पे लेके जाने का मैसेज है, स्ट्रेस को फेंक दो. तो स्ट्रेस को जब फेंक देंगे तब हम अपने आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी काम करेगी और कोई हमें तकलीफ देने वाला नहीं, हम सब खुश और हेल्दी रहने वाले. सो सबसे अच्छा पॉइंट कहाँ पे रहना है? सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ मैं एक भूल गया बोलने में, ब्रेकडाउन है. ज्यादा स्ट्रेस चलता रहेगा तो हम बर्नआउट हो जाएंगे, थक जाएंगे. और थक जाएंगे स्पेशली आप में से और हम लोग जो स्पेशल बच्चों के जूझ रहे, उनको ब्रेकडाउन का, बर्नआउट का रिस्क ज्यादा रहता है. एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वेबिनार्स अबाउट हाउ टू प्रिवेंट देम. तो सबसे अच्छा पॉइंट कहाँ पे रहना है? तो एक चढ़ते वाले ग्राफ में रहना है. तो इफ यू आर इन द 4 to 10, 4 to 12 जोन, ये अपने लिए सबसे अच्छा जोन है. तो ध्यान में रखें कि वी नीड टू बी हैविंग और मैनेजमेंट ऑफ द स्ट्रेस इन द बेस्ट पॉसिबल है. आप सबने प्रोबेबली अपना अपना स्ट्रेस लेवल जांचा है, ये फिक्स नंबर नहीं है. तो यहाँ पे जो कुछ मदर्स एंड फादर्स है, मैं सबको बोलने वाला हूँ, स्ट्रेस एक चेंज होने वाला नंबर है. तो हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं और यही करने के लिए तो आज बैठे हैं. तो अभी कैसे करेंगे? कैसे करने के लिए अभी क्या है तो पता होना चाहिए. तो स्ट्रेस के, हमें स्ट्रेस को अभी तोड़ ही डालने का है, हमें इसको रखना नहीं. अगर रखना नहीं है तो क्या करेंगे? तो क्या करने का पहला पार्ट है, स्ट्रेस के टाइप्स भी है. स्ट्रेस एक सिंपल सीधी चीज नहीं है. तो हमारा जो तान, टेंशन है, उसके भी टाइप्स है. सो 4 टाइप बोले जाते हैं: एनकाउंटर, एंटिसिपेटरी, सिचुएशनल एंड टाइम. Don't worry, I'm going to discuss each and everything in a quick way on over the next few minutes. Encounter stress.
worry about interacting with a person or इंटरेक्टिंग विद पीपल इन डिस्ट्रेस। अब एक बात पे रखो कि आज क्या हो गया, ये लॉकडाउन के कारण सब मदर फादर बच्चे सब घर पे अटके हुए हैं। अभी अपना ही हस्बैंड है, अपना ही स्पाउस है, लेकिन उनके साथ रोज जब एनकाउंटर होने वाला है तो क्या होने वाला है, स्ट्रेस तो बढ़ेगा, झगड़ा पहला होने वाला है। तो आप सबने देखा होगा कि पहले 2 दिन अच्छा लगता है, बट बाद में क्या शुरू हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ में झगड़े शुरू होते हैं, और झगड़े का कारण भी कुछ नहीं रहता, चलो हम एक साथ है चलो झगड़ लेते हैं। क्योंकि हस्बैंड को वाइफ का चेहरा रोज देखने की आदत नहीं है, और वाइफ को itni nahi, I will interrupt so that because usually the husband go to office or their workplace, so they are available at their home for a little time, but now it is 24/7. Okay. तो इससे स्ट्रेस सबका बढ़ सकता है, तो पूरा घर का प्रेशर कुकर हो सकता है। हाँ? तो ये हमें एनकाउंटर अवॉइड करने का है। कैसे अवॉइड करेंगे, तो ओवर द टाइम हम डिस्कस करेंगे वो एनकाउंटर का आज के हिसाब के क्या रिश्ता है। तो यहाँ पे एक गड़बड़ है। तो 2 वर्ड्स है, थ्रेट एंड रियलिटी। थ्रेट का मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अपना बच्चा घर पे वो भी बोर हो रहा है, कुछ यहाँ से वहां से उटक पटक हरकतें करने वाला है, पर्दे खींचने वाला है, पानी स्पिल करने वाला है, कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता है कि चिल्ड्रन आर लाइक डेविल्स, दे कैन डू एनीथिंग इफ दे आर लेफ्ट ऑन देमसेल्व्स। तो ये वक्त हमें ऐसा किसी मदर को लग सकता है कि नहीं नहीं मैं मेरे बच्चे को पकड़ के रखूं। तो पकड़ के रखना यानी ओवर रिएक्शन ऑफ थ्रेट है। बच्चे ने तो दंगा करना ही है, और उसको अगर हम पकड़ के रखेंगे सो यू आर ओवर रिएक्टिंग टू द थ्रेट। किसी और पेरेंट को लगेगा अरे बाप रे, मैं बच्चे के साथ अभी 24/7 घर पे हूं, मेरा कैसे होगा। लेकिन आपको पता नहीं है, आप आपके हस्बैंड को मैनेज कर सकते हो, तो बच्चे को मैनेज करने में क्या डिफिकल्टी है। तो आप में कैपेबिलिटी है, यू कैन डू दोस थिंग्स। तो अपने खुद के एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करना ये भी गलत है। सो थ्रेट एंड रियलिटी। तो आज हम सबको ऐसे लग रहा है कि अभी हमारा क्या होगा, स्पेशली जब हम घर पे बैठे हैं, आगे अपना काम नहीं हो रहा है, ऑफिस हमें छुट्टी देगा क्या, निकाल देगा क्या, लेकिन ये प्रॉब्लम सबके लिए है। तो ये हमें थ्रेट लग रहा है, आगे क्या होगा ये हमारे लिए थ्रेट है, और वी आर अनेबल टू मैनेज द थ्रेट। तो आज सब जब हमारे ये छोटा सा वेबिनार खत्म होगा, तो आप सब एक चाय के कप पे बोल दो, सोच लो कि हमें किस चीज का डर लग रहा है। तो मेरा पहला होमवर्क मैंने आपसे करवाया कि आपको अपना स्ट्रेस कितना है पता चला। अभी आपको सेकंड पार्ट में घर के लिए दे रहा हूं कि आपको जो चीजों का टेंशन आ रहा है, जिस चीज को आपका डर है, उसका लिस्ट बनाओ, और इसी वक्त आपकी ताकतों का भी लिस्ट बनाओ। तो थ्रेट उसकी लिस्ट बनाएंगे, और रियलिटी आप में ताकत क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, उसकी लिस्ट बनाओ, और आपको तुरंत पता चलेगा अरे थ्रेट तो अपने ताकत से बहुत कम है, वी कैन मैनेज आवरसेल्व्स बेटर। ये होने के बाद अभी आप पहला टाइप हो गया एनकाउंटर स्ट्रेस। अभी दूसरे देखते हैं एंटीसिपेटरी स्ट्रेस। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रेस आज हम सबसे हमारे दिमाग पे, आगे क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, आगे सब अच्छा होगा, समथिंग विल गो रॉन्ग। ये सबके दिमाग में रहे, मेरे हस्बैंड के बारे में क्या होगा, मेरे वाइफ के बारे में होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे पिताजी का क्या होगा, कितना इन्हें हमारे दुनिया का क्या होगा। हम लोग सोच सकेंगे तो पूरी पृथ्वी का क्या होगा। सोचने के लिए तो बहुत कुछ चीजें। हेलो, तो ये जो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो ये कोरोना हमें क्या तकलीफ देगा, मैं इससे भाग सकता हूं क्या, और ये भागने की जो इच्छा है ये सबसे बड़ा स्ट्रेसर है। तो इससे हमें दूर रहना है। सो ये एंटिसिपेट करना है कि एंटिसिपेट हम कर रहे हैं कि ये ऐसा क्या हो सकता है। बट आई रिक्वेस्ट यू, हम डिस्कशन ऑफ द स्ट्रेटेजीज बहुत डिटेल में ओवर द टाइम करेंगे, लेकिन आज का घर जाने का सेकंड सेंटेंस, क्यों आगे का सोचते हैं, आज का सोचो, आज के दिन में खुश रहो, और आज के मोमेंट पे खुश रहेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो कुछ तो अनाप शनाप सोचो, कुछ जोक्स दो, अपने ही कुछ चीजें जिसके कारण सब आपको हंस चुके हैं उसके बारे में सोचो। ये आपका एंटीसिपेटरी स्ट्रेस कुल लेने भाग जाएगा, चिंता करने की बात नहीं उसका। एंटीसिपेटरी स्ट्रेस का एक दूसरा पार्ट भी है। हम ये बीमारी के बारे में बहुत सोच रहे हैं, और ये बीमारी के बारे में सोचने लिए अपना मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो हमें ये हो रहा है कि किस कोने में किसको क्या हो रहा है, ब्रिटेन के पंतप्रधान को क्या हो रहा है, हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये फियर ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग ये अपने और स्ट्रेस बढ़ा रही है। ये सब आगे का है, आगे जब हो ही नहीं रहे कुछ, आज का तो सोचते हैं। आज का दिन सबसे अच्छा दिन है। आप ये सोचो कि आप सब लोग जो आपको बहुत काम करने के कारण छुट्टी नहीं मिल रही है,
और आप छुट्टी को जाना चाहते, और आज आपको भगवान ने चॉइस दिया है, चलो छुट्टी पे रहो, और दुनिया की सबसे बेस्ट चीज, सबसे बड़ा 5 स्टार होटल आपका खुद का घर है, तो व्हाई डोंट यू लिविंग दैट 5 स्टार अपने घर पे होटल में एंजॉय क्यों नहीं करेंगे? ये जब सोचेंगे आज की मेरी छुट्टी चल रही है और मैं दुनिया की सबसे बड़ी छुट्टी मेरे लिए आज ले रहे हूं, और उसके लिए आई एम एंजॉयिंग दैट थिंग, और हम छुट्टी पे है, और छुट्टी पे कहां पे है? दुनिया के सबसे 5 स्टार होटल में, जहां पे सब चीजें हैं, और जो अपनी तरीके से चले। हाँ, अपनी तरीके से चलने के लिए अपने हाथ से खाना पकाना ये अलग बात है, बट वी आर एंजॉयिंग आवर छुट्टी। आज सोचेंगे तो आगे का एंटिसिपेशन चला जाएगा। ये हुआ दूसरा। पहला क्या था? एनकाउंटर। दूसरा क्या था? एंटीसिपेटरी। अभी तीसरी चीज पे बोलेंगे, सिचुएशनल स्ट्रेस। ये मीडिया का सबसे बड़ा काम चल रहा है आज, कि इतना स्केयर, इतना डर पैदा करते हैं। ये डर जरूरी है, क्योंकि लोग बाहर से हम इंडियन लोग बहुत ग्रेट है, हम लोगों को थोड़ा चांस मिला तो हम अपना घर छोड़ के बाहर घूमने लगते हैं। तो मीडिया का ये काम अच्छा है कि समथिंग इज स्केरी आउटसाइड, घर पे रहो, बट ये स्केयर घर के बाहर ही रखेंगे ना, अंदर क्यों लेके आएंगे? बाहर जाना स्केरी है, बराबर है, बट घर में कहां पे स्केयर है? ये ध्यान में रखेंगे तो इसका हमें लगता है कि अभी अपने बाहर कुछ भी हो सकता है, मुझे ये कोरोना दिख नहीं रहा है, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? तो ये अपने लिए सिचुएशनल स्ट्रेस है। और ये सिचुएशनल स्ट्रेस सिर्फ कोरोना की नहीं है, घर में जो कुछ चल रहा है, अपने बच्चा में पीछे लग रहे, अच्छी तरह से नींद दोपहर की सोच रहे, और बच्चा आके मम्मी मम्मी करके उठा देता है। तो दिस इज द थिंग विच इज नॉट आउट ऑफ, इज नॉट इन आवर कंट्रोल, और ये तो होने ही वाला है। हाँ, पापा जी सोच रहे हैं कि आज चलो, आज जरा आराम करते, एक आज तक ऑफिस में डेस्कटॉप पे सोते हैं, तो आज डेस्कटॉप के न सोते हुए बेड पे सोएंगे। और फिर मम्मी जी उठा देती और बोलते हैं, क्या चलो सो क्या रहे हो, अभी तक तो आपको बर्तन मांजने हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? सिचुएशन इज नॉट इन योर कंट्रोल, बट इसका स्ट्रेस लेने का है, आई थिंक इट इज नॉट अ गुड आइडिया। सो सिचुएशन जहां पे, और इस पे फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज अ सिचुएशनल स्ट्रेस। अब ये सिचुएशन थोड़ा कोरोना के एंगल पे देखते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग से बड़ी गड़बड़ भी हो चुकी है। हम सब इंडियंस को एक बहुत अच्छी आदत है, मैं अच्छी बोलता हूँ, कि हम कुछ भी स्ट्रेस आए तो हम तुरंत पहले क्या करते हैं? पहले मम्मी को फोन घुमाते हैं, बाजू वालों के घर पे जाते हैं। सबसे अच्छा स्ट्रेस निकालने का तरीका क्या रहता है? स्कूल में जाते हैं और तवा वाला मैडम का सिर खाने लगते हैं। हाँ, सो ये सोशल डिस्टेंसिंग सब बंद हो चुका है। तो वी आर, हम सब एट होम है, तो एट होम को हम इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत अच्छी चीज है, बट एट होम होते हुए हमारा सपोर्ट चला गया है। जो बच्चे 2 घंटे के लिए कम से कम स्कूल में जाते हैं, वो आज घर पे है, उनको खेलने के लिए जगह नहीं है। अपना हस्बैंड घर पे रह के अपने बारीक बारीक चीजों पे ध्यान दे रहा है, उल्टा भी हो रहा है, हस्बैंड की चीजों में वाइफ ध्यान दे रही है। ये सब सिचुएशनल स्ट्रेस है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम आजू बाजू के साथ मिल नहीं रहे। पर आज के लिए एक पॉइंट हम बोल रहे हैं, ये जो आज मैडम जो कर रहे हैं, सुंदर जी आपकी स्कूल रही है, दिस वन ऑफ द वे टू ओवरकम दिस सोशल डिस्टेंसिंग। आज देखो ना, मुझे पता है कि आप में से मेरे सामने 150 लोगों के क्या बोलते हैं वीडियोस आके चले भी गए, बट आई एम वेरी श्योर दैट वी आर ऑल गेटिंग कनेक्टेड। आज जब मेरे साथ आप सब 150 लोग जुड़े हुए, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये जुड़ा होना, ये सोशल डिस्टेंसिंग को अलग से कम कर रहा है। तो हम सब एक साथ चल रहे हैं, तो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। चलो, मेरे जैसे और भी लोग हैं। तो मैडम ने जब बोला कि डॉक्टर आपको कुछ हमारे लोग, मैंने बोला हाँ चलो, अच्छा हो गया, कोई तो मेरा सुनेगा। हाँ, तो घर पे लोग सुनेंगे ना सुनेंगे, लेकिन तो लोग मुझे आज सुनेंगे। तो दिस इज सिचुएशन स्ट्रेस। तो पहला हमने क्या किया? एनकाउंटर स्ट्रेस। दूसरा हमने किया एंटीसिपेटरी स्ट्रेस। तीसरा हम कर रहे हैं सिचुएशनल स्ट्रेस। अभी चौथी चीज के ऊपर देखते हैं, दैट इज अ टाइम स्ट्रेस। अब ये मुझे भी आ रहा है, मैडम मेरे पास घूर घूर के देखने लगने वाले कि कितना टाइम ये बोलने वाला है, टाइम खत्म होने वाला है। तो ये टाइम का स्ट्रेस है। अभी आप बोलेंगे अभी घर पे रहते हैं तो क्या टाइम का स्ट्रेस है, बट देखो, घर पे रहते हुए भी अभी आपको पता चल रहा होगा कितने सारे काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि आज हमारा सपोर्ट सिस्टम चला गया। स्पेशली यहाँ पे जो वर्किंग पेरेंट्स है, स्पेशली जो आईटी डिजिटल पेरेंट में जब को बोलता हूँ, आईटीएस बोलता हूँ, या आईटीएस का तो प्रॉब्लम बहुत खराब हो रहा है। वो मुझे पता नहीं चलता है कि वो काम पे है या घर पे है, एंड दे आर मैनेजिंग एवरीथिंग टुगेदर। सो आपको भी, स्पेशली दोज आर वर्किंग फ्रॉम होम, आपको भी डेडलाइंस चालू है,
या आपको भी काम करने में पड़ रहा है, तो ये सब आपको टाइम इज वन थिंग विच क्रिएट्स प्रॉब्लम। और ये टाइम स्पेशली व्हेन चिल्ड्रन आर एट होम, आप पहला खाना पका के खुश करके बैठती है और बच्चा बोलने लगता है मम्मी मम्मी कुछ खाना चाहिए, और आगे का टाइम स्ट्रेस शुरू हो गया। तो दैट इज अ टाइम स्ट्रेस। तो ये टाइम स्ट्रेस का दूसरा मतलब क्या है? आज हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ऑफिस भी है, चाइल्ड केयर भी है, हाउस होल्ड वर्क भी है और स्पाउस केयर भी है। तो हम सब एक दूसरे को संभाल रहे हैं और ये सब के लिए टाइम कम ही पड़ रहा है। मुझे पहले लग रहा था कि चलो घर पे बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम है, बहुत कुछ चीजें पूरी करेंगे, क्या लेकिन पूरी चीज पूरी नहीं हो रही है। हाँ, काम की लिस्टें बढ़ ही रही है बिकॉज वी हैव गॉट मेनी Agree with टू डू द सेम टाइम। मैडम कुछ बोलना चाहती थी शायद। I really agree with you because our teachers are facing the same thing. They've become हाँ, teachers, educators, nurses, everything at home. So या this is very तो टाइम कम ही पड़ने वाला है, सो 24 आवर्स कम ही पड़ रहे हैं। सो दिस इज द फोर्थ स्ट्रेस, और ये सब चीजें आपको हमें स्ट्रेस बनाती है। तो आपको मैं अभी आई एम क्वाइट श्योर, जो पहला मैंने हमको होमवर्क दिया था कि आपको थ्रेट्स एंड अपनी कैपेबिलिटीज ये आपको लिखना है। तो अभी दूसरा चाय के कप पे काम करना है सबको, कि आपको आपके स्ट्रेसेस की लिस्ट बनानी है और इस स्ट्रेसेस को एक 4 कंपार्टमेंट पे रखना है। तो अपना ये स्ट्रेस एनकाउंटर, फॉर एग्जांपल हस्बैंड के साथ लड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रही हो, आपका एनकाउंटर स्ट्रेस है। आपको अपने बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता है तो इसका मतलब है आपको एंटीसिपेटरी स्ट्रेस है। हाँ, आपको लगने वाला है कि अभी कहाँ अटक गए, बाहर नहीं घूमने जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो ये सिचुएशनल स्ट्रेस है। और टाइम कम पड़ रहा है हाथ में, ये टाइम स्ट्रेस है। तो ये 4 अब खुद को जानने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं आज के पूरे छोटे से डिस्कशन में कि आप खुद का स्ट्रेस मैनेज करने को सीखें। तो अपना स्ट्रेस पता चला, खुद के स्ट्रेस के कारण पता चले। आज हम लास्ट में कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बोलने वाले कि हम क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ के क्या कर सकते हैं। तो ये चारों चीजें होने के बाद हम स्ट्रैटेजीज के आज पूरा प्लान मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जो कुछ स्ट्रेस आपके ऊपर आ रहा है, हमारे ऊपर आ रहा है, उसको सॉल्यूशन तो पक्का है, सॉल्यूशन जाएगा किधर? तो सॉल्यूशन हम 3 पार्ट्स में रखते हैं, इंस्टेंट सॉल्यूशंस, नेचुरल सॉल्यूशंस एंड आगे जाके स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस। तो उसके ऊपर हम बाद में बोलेंगे। जो ग्रीन पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में, अगले डिस्कशन में, सेशन में लेने वाले। आज हम ये पहले 2 पे करके मैं मेरा स्ट्रेस आपके लिए कम करने वाला। आप अभी थकने वाले हो मेरा सुन के, ये डॉक्टर बहुत बकबक कर रहा है और मैडम के लिए हम सुन रहे हैं, ऐसा आपके बहुत लोगों को लगने वाला है। तो मैं ज्यादा बकबक नहीं करूंगा, पहले 2-4 चीजों पे बोलूंगा। तो इंस्टेंट एंड नेचुरल, उस पे भी नेचुरल एंड नैसर्गिक। इसमें क्या है कि सबसे बड़ा स्ट्रेस रिलीवर क्या है, तो सोना है। आज टाइम मिल रहा है, ऑफिस नहीं है, घर पे बैठ के सो लीजिए, जितना सोचो मिल सकता है सोने के सोचो। जितना ज्यादा सोचोगे तो थोड़ा वेट बढ़ेगा और एक स्ट्रेस बढ़ेगा। तो बट स्लीप इज अ गुड गुड स्ट्रेस बस्टर। तो उसके ऊपर आपको काम करना है। तो आपकी नींद कम मत होने दो। हाँ, एक मैं आपको रिक्वेस्ट है, तो नींद के बारे में हम पहले हमें बोलते हैं। तो एडिक्वेट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें एक ध्यान में रखें, हम सब लोगों को एक गलत आदत लग चुकी है। मैं तो बोलता हूँ ये जो पैंडेमिक है ना, ये पैंडेमिक अपने लिए कंप्यूटर को एक रिबूट का नाम बटन रहता है। तो कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम आने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको रिस्टार्ट करते हैं। तो नेचर हमें रिस्टार्ट करने को बोल रहा है। अपनी एक छोटी गलती हो रही है, जैसे हमारे हाथ में इलेक्ट्रिसिटी, एलईडी ये सब आ गए, तब हम जब शाम होने लगती है तो सोने के बजाय अपने लाइट्स सब ऑन हो जाते हैं। अब 10 11 12 हम देर रात तक जगते ही रहते हैं। और मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि अगर हम सूरज के साथ वेकअप हो जाए, सुबह सुबह सनराइज के साथ अपना भी राइज होने वाला है और सनसेट्स के साथ हम भी सोने वाले, तो ये साइकिल सेट करने का बेस्ट टाइम ये है। आप बोलेंगे डॉक्टर ये बोलने में अच्छा है, बच्चे कहाँ पे सोने देते हैं। हाँ? पर अगर बच्चों को सुलाने का है तो एक मैं सबको एक 3 अपना ड्रामा के लिए 3 घंटी पहले बजते हैं, पता है आपको? तो पहले घंटी बजती है तो उस वक्त आपके घर के सब एक्टिव लाइट्स कम करो। बच्चों को अगर 10 बजे सुलाना है तो अपना 7 बजे घर के सब लाइट्स कम होने हैं। हाँ, 2 फायदे हैं, बच्चे भी जल्दी सोने वाले और दूसरा आपका लाइट का बिल भी कम आएगा।
दूसरी चीज 8 बजे आपकी दूसरी घंटी बजनी चाहिए कि चलो घर पे जो साउंड्स बज रहे हैं, तो रेडियो चालू है, मोबाइल बज रहे हैं, टीवी का बैकग्राउंड चल रहा है और अपने झगड़े भी चल रहे हैं, तो सब साउंड्स टाइम प्लीज करके बंद करने हैं। तो ये बच्चों के स्लीप के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी बेल बजनी चाहिए 9 बजे, तब तक आपका खाना वाना होना चाहिए और हमारी एक्टिविटी पॉज करके रखने के, हमारी एक्टिविटी भी बंद होनी है। जैसे रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं वैसे अपना एक्टिविटी पॉज करेंगे और सब लोग मिलके बेडरूम में जाएंगे, तब शायद शायद 10 बजे आपके बच्चे सोने वाले। बट सोने पे अच्छा काम करो, अपनी नींद अपने लिए सबसे बड़ी लग्जरी है। वन ऑफ द सेइंग है, लोग बोलते हैं कि दुनिया पे रहते हुए भी अगर स्वर्ग महसूस करना है तो सोना है। एंड सोने से स्ट्रेस तो कम होने वाला है, एंड स्टार्ट एंजॉयिंग दिस लग्जरी ऑफ स्लीप एंड डोंट मिस दिस टाइम। सो दिस वन ऑफ द स्ट्रेस बस्टर। सेकंड स्ट्रेस बस्टर इज अपना फूड। बट फूड के बारे में आई थिंक मैं और तवाला ने बोल चुके, हम बहुत ओवर द टाइम हम अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले। आज मेरा एक ही लाइन आपको सबको बोलना है, स्टे अवे फ्रॉम जंक। घर पे बैठ के सिर्फ चिटोज एंड कुरकुरेज एंड फरसाण मत खाते रहो, इरिटेशन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, इतना ही नहीं वेट भी बढ़ेगा। तो सोचो, तो जंक एंड प्रोसेस फूड प्लीज अवॉइड करो, इट्स अ स्ट्रेस बस्टर। हम इसके बारे में और डिटेल में आगे जाके मैडम आपके साथ चैट करने वाले, विल वेट फॉर दैट सेशन। लास्ट पार्ट टू डिस्कस अबाउट इज एक्सरसाइज। Exercises is very important. Exercises release, it releases positive chemicals which calms the mind. तरह के क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं अभी पढ़ रहा था वो बताता हूँ। एक 15 मिनट आप अपना एक विंडो पेन, अपने खिड़की का एक कांच साफ करो, आपके 50 कैलोरीज बर्न होने वाली है। तो 2 विंडो पेज क्लीन करो। एक मैडम तो हंस रहे मेरे सामने, मुझे अच्छा लग रहा है कि हम सिर्फ घर के सब विंडोज क्लीन करोगे तो 300 कैलोरीज ऐसी चली जाएगी। इसका मतलब अगर रोज करेंगे तो 300 ग्राम भी आपका एक महीने में कम होने वाला है। तो सिर्फ क्लीनिंग इज ऑल्सो एक्सरसाइज। एक दूसरे के पीछे दौड़ना ये भी अच्छी आदत है, उससे भी एक्सरसाइज होने वाला है। एक दूसरे पे चिल्लाने से भी 10 कैलोरीज बर्न होती है। तो अगर कुछ ना हो सके तो चिल्लाना शुरू करो, झगड़ना शुरू करो, उसमें भी आपका एक्सरसाइज है। बट कीपिंग द जोक्स अपार्ट, प्लीज मूव योर बॉडी। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कम से कम आधा घंटा, आइडियली 1 घंटा अपने एक्सरसाइज पे काम करो, जो मन में आए करो। ऐसा नहीं है कि एक ही कुछ चीज है, यू कैन डू मेनी थिंग्स। हम टाइम मिला तो उसके ऊपर डिस्कस भी कर पाएंगे। बट मूव योर बॉडी। एक जगह पे बैठ के टीवी के न्यूज देखते मत रहो, स्ट्रेस बढ़ने ही वाला है। और ऐसे वक्त कुछ लगा, अरे मैं टेंशन में जा रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मुझे पैनिक हो रहा है, पहले क्या करो, अपने जगह पे जंपिंग करना शुरू करो एंड यू विल फाइंड दैट यू आर गेटिंग स्ट्रेस फ्री इमीडिएटली। अभी एक वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस स्ट्रेटजीज इन डिटेल इन नेक्स्ट टाइम। अभी मैं जो लास्ट लेने वाला हूँ वो ब्रीदिंग टेक्निक बोलने वाला हूँ, और ब्रीदिंग टेक्निक अश्विनी हम आप सबसे करवाने वाले। एवरीबडी रेडी? आई होप दैट यू आर रेडी. Before going to the breathing technique, Masrat ma'am has said us to summarize the session. So quickly I am summarizing all sir's point. So first sir said कि 1000 days ऐसे ही जाएंगे. So don't worry about how much. 1000 नहीं, 100. मुझे स्ट्रेस बढ़ रहा है 1000 से. Oh sorry 100. Sorry 100 days ऐसे ही जाएंगे. Secondly, through the stress. Okay. Then follow all the government guidelines. Then try to know how much stress you have. So for that I conducted one questionnaire. So you must have noted it. Now list all the causes of stress. That is all your strengths as well as weaknesses. Then after that, आज का सोचो, be in the present moment. Okay. Then your house is your 5-star hotel and you are now on wonderful vacation. Think of that. Then the next point is don't take fear inside your house. Keep fear outside your house. जूते निकालने जैसे फियर को भी बाहर ही रखो. Okay. Yeah. Next point is don't feel that you are not supported by these different platforms. Take positive messages and remain connected. Then release down all the stresses, and through all such webinars, remove the stresses. Try to get the strategies. Try to compartmentalize all the things.
Then one of the important message that sir has given is nature has given us an indication restart or reboot your life. And for that, adjust or set your body clock and then enjoy the luxury that is the sleep. And exercise, which sir has mentioned, it can be done in different ways. Minimum 10,000 of steps should be walked in the house, no outside. Okay, that can be done. Yoga can be done. Any workout can be done. Okay, so let's go to the last part, that is breathing technique. I request all of you to close your eyes and follow my instructions. They need to. So first, please close your eyes. Now breathe in through your nose. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Breathe out through mouth. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Breathe in through your nose. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Breathe out through your mouth. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. One more cycle. Breathe in through your nose. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Breathe out through your mouth. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. This is called as a simple breathing technique which you can follow anytime. Please open your eyes. You can do several of the cycles. This was just a glimpse because in a given short time we can't do several cycles. So minimum 2 to 3 minutes if you do, you will get the results. So whenever you feel you are getting stressed, you are getting angry in any of the situations, follow all these steps and more strategies will come in the upcoming sessions of this webinar. Thank you. तो ब्रीदिंग का क्या एक ही ध्यान में रखो कि यू कैन रिपीट इट अगेन एंड अगेन. सबसे आप खाना का सोचेंगे तो ब्रीदिंग का सोचो, क्योंकि सबसे पहला खाना ब्रीद है. तो अपने सांस पे काम करो. स्ट्रेस बस्टिंग का सबसे बेस्ट तरीका इज ऑक्सीजन. सो सांस लेना बढ़ाओ एंड यू विल बी फाइंडिंग इट वेरी गुड. एक अभी आज ऐसा ही पढ़ रहा था, वो आपको बताना चाहूंगा कि एक बुजुर्ग ने जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था, so he started crying with a joy. People asked him, why you are crying? He said that, भैया मुझे आज पता चला, जो वेंटिलेटर का जो मैं बिल पे कर रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि ऊपर वाले भगवान ने हमें ये जो ब्रेथ दिए, ऑक्सीजन दिया है, हवा दी है, वो मुफ्त में दिए. मुझे आज पता चला कि वो कितना इम्पोर्टेंट है. सो हमें ऊपर वाले भगवान ने फ्री में हवा दी है, सांस दिया है, उसके ऊपर सबका ग्रेटिट्यूड डिक्लेयर करो, खुद के ब्रेथ पे ध्यान दो एंड यू विल फाइंड दैट यू आर लिविंग मच लिवली. आपका स्ट्रेस चला जाएगा. तो आज हम यहीं पे रुकते हैं. आई विल ओपन इट फॉर द क्वेश्चन आंसर्स. Next strategies will come in the next part. Thank all of you to be with me and talking with me, listening to me, both of us carefully. Yeah. Thank you again. So stay happy, stay healthy. That is from us. We will Sir, open there the things for questions. Yeah, sir, one question. How can a parent of an autistic child cope with the current situation, because the structure is so very difficult to break and then learn and relearn? Yeah. तो फर्स्ट थिंग इज आई ऑलवेज लाइक पीपल टू थिंक दैट हम लोग, स्पेशली दोज हु आर हैविंग चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, मैं आप सबको पेरेंट को बोलूंगा अगेन, दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी. हम सब लोग बोलते हैं कि भैया जी मैडम आप अपने बच्चों के साथ जितना काम करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो आपको ऊपर वाले ने ये टाइम दिया है. एक आपको ट्रिक बताता हूँ कि आपके दिन के ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ढूंढो जहां पे आपका बच्चे का प्राइम टाइम है. प्राइम टाइम मैंने आपने देखा होगा, आई टू अगेन गो विद पेन एंड पेंसिल. आप पूरे दिन में अपने चाइल्ड विद ऑटिज्म को बेस्ट कब परफॉर्मेंस रहता है ये आपको ढूंढना है. फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का सुबह उठने के बाद रहेगा, किसी बच्चे का खाना खाने के बाद रहेगा, किसी बच्चे के एक खेलने के बाद रहेगा. तो फाइंड आउट सच एटलीस्ट 6, आई एम सेइंग 6 टाइम्स द चाइल्ड शुड बी एट इट्स बेस्ट, और आपको मिलेंगे. ये जो 6 टाइम है, दे आर द टाइम टू सेट अप एज अ
बिहेवियर थेरेपी और कामिंग आइडियाज और उस वक्त इस्तेमाल करने का। तो इतना डजा ऐसा नहीं है कि जब सिचुएशन हाथ के बाहर चले जाएगी तब हमें अपने बच्चे को संभालने का नहीं है। यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग ऑटिज्म के बच्चों का मेन प्रॉब्लम क्या रहता है, दे एंड अप इन मेल्टडाउन्स फॉर एनी सिली थिंग। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे वांट टू मूव, और कितना भी अपना घर बड़ा हो बट ऑटिज्म के बच्चों के लिए बहुत कम ही पड़ता है। तो घर के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे, हम उसको पकड़ के बिठा रहे, एंड दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर द मेल्टडाउन्स, एंड ऑब्वियसली देन इट स्टार्ट्स इनटू स्ट्रेसर। तो आपको पता करना चाहिए कि बिफोर लैंडिंग कम इनटू द मेल्टडाउन, आपको ये मेल्टडाउन होने वाला ये समझना चाहिए। So I wanted to take this message again, especially for the parents with autism. Another beautiful time to know मेरा बच्चा कब बिगड़ जाता है, या के हस्बैंड को, फादर्स को पता होगा कि उनका अपने अपने वाइफ के चेहरे के एक लाइन पे पता चलता है कि अभी अपने वाइफ का चेहरा का मूड डिस्टर्ब होने वाला है। पर अपने बच्चों के बारे में हैव यू थॉट ऑफ इट? और मैं आपको बताता हूँ विद चैलेंज एंड विद कॉन्फिडेंस, एक 4 दिनों के लिए ये एक्सरसाइज करो और ढूंढने लगो कि मेरे बच्चे का मूड कब खराब होता है। अगेन होमवर्क टू वर्क अपॉन बिफोर एक्टिंग ऑन इट। तो 4 दिन जब लिखते रहोगे कि यहाँ पे ये पॉइंट पे मेरे बच्चे का मूड खराब हो गया, ये पॉइंट पे खराब हो गया, ये पॉइंट में मेल्टडाउन में गया, ये पॉइंट में वो ब्लास्ट हो गया, ये पॉइंट में वो रोने लगा, स्टार्ट राइटिंग दोस थिंग्स टुगेदर। और ये जब पता चलेगा तो उसमें भी पैटर्न रहता है। ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमें ढूंढना है, और अगर पैटर्न बना जाएगा तो बिफोर द मेल्टडाउन यू कैन एक्ट। एक्टिंग कैसे करने का है, इसको हम रीएन्फोर्समेंट, यानी तो चीजें जो बच्चों को अच्छी लगती है। आपको सुंदर जी में सिखाया ही होगा कि हाउ टू वर्क अपॉन दोस थिंग्स वेयर द चाइल्ड विल अगेन रिगेन हिज कॉन्फिडेंस। ऑटिज्म में प्रॉब्लम क्या रहता है, द चाइल्ड कैनॉट थिंक दैट द थिंग्स अराउंड आर सेफ फॉर हिम, एंड दैट सेफ्टी जो है घर पे भी बच्चे को लगता है कि अभी ये जो चल रहा है आजू बाजू वो बौखलाने वाला है, वो डिस्टर्ब करने वाला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और हम सेकंड पार्ट क्या करेंगे, अपने बच्चे को क्या करने से अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल वी थिंक ऑफ दोज सॉफ्टी बॉल्स, तो उसको प्रेशर दे देंगे तो उससे क्लियर होने वाला है। कुछ चीजों को, बच्चों को छोटा सा टुकड़ा कैडबरी का खिलाया, वो सीधे होने वाले। कुछ बच्चों को सिर्फ गोद में लिया और उसके कान में गुनगुनाना शुरू करा, जिसको हम calming techniques बोलते हैं। We are going to discuss the calming techniques in a big detail next time, पर आप ये calming techniques खुद की पहले लिस्ट डाउन करो कि ये 10 चीजें करने से अपना बच्चा शांत होता है। यूज देम फ्रीक्वेंटली, एंड इतना ही नहीं, और ढूंढो क्या और करने से अपना बच्चा शांत होता है। अभी एक मम्मी ने मुझे कल ही एक सेशन में बोला कि एक इंटरेस्टिंग बात, पापा की तरफ से मम्मी की तरफ दौड़ना और मम्मी की तरफ से पापा की तरफ दौड़ना, ये भी एक बच्चे के लिए कामिंग टेक्निक है। सिर्फ घर में दौड़ना या ये रूम से वो रूम में दौड़ना, ये मेल्टडाउन ट्रीट करने का उनको पता चला है आज के लिए। अगला दे आर सेइंग दैट विल फाइंड इट आउट, बट दीज आर द वेज वी कैन वर्क ऑन देम। उनके नींद पे और उनके खाने के पॉइंट पे ध्यान रखो, स्पेशली जब बच्चे घर में रहते हैं तो उनकी एक्टिविटी कम हो गई तो खाने के टाइम भी बिगड़ जाते हैं। स्पेशली आई वांटेड टू कंटिन्यू द स्कूल लाइक रूटीन, कि स्कूल में जाने के पहले आज क्या लगता है स्कूल नहीं है तो चला थोड़ा आराम से उठेंगे, नहीं, मेंटेन द रूटीन एट होम। इतना ही नहीं, मैं आपको बोलूंगा जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के आवर्स में स्कूल जैसी एक्टिविटीज, वहां पे मैं आपको मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाने को नहीं बोलूंगा, बट वहां पे कुछ ना कुछ जहाँ पे सीखना है, कहीं पे ओरिगामी करना है, कहीं पे क्ले के साथ खेलना है, क्ले घर पे नहीं तो आटे के साथ खेलना है, ये सब स्कूल के आवर्स में स्कूल जैसे एक्टिविटीज करते रहो, रूटीन्स फॉलो करो, बच्चों के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, स्ट्रेस के प्रॉब्लम कम हो जाएंगे। सर आई विल लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। सर ने जो भी पॉइंट बोला है इनके लिए आप डायरी मेंटेन कर सकते हो, जैसे लॉकडाउन डायरी यू कैन से, इन विच all the points which sir has said, the best time of the child, the problems of the child, tackling strategies, please start writing them. You can write down on the calendar, in a mobile notes or in a notebook, and take a review of 4-5 days and accordingly implement them. That is one thing. Secondly, whenever you are finding all these problems, then घर पे रहते ही जो भी स्कूल में किए हुए चीजें हैं, आपने थेरेपी सेशन में पता किए हैं, वो सभी घर में इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए. That will help you to handle your child. And one of the important thing I would say is, this is the wonderful time to teach your child life skills, जिसमें activities of daily living कहते हैं. सिंपल सिंपल चीजें जैसे किचन वाली चीजें हैं
ये सब में बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, बिकॉज इफ द चिल्ड्रन यूज देयर हैंड दे विल बी बिजी एंड दैट वुड इट इज जस्ट लाइक अ मेडिटेशन, सो इट वुड बी बेटर. ओके. So we have one question. The sleep patterns. How do we induce correct sleep pattern? Lot of questions on sleep pattern. हाँ, पहले तो मैं रिपीट अगेन कि वी शुड फॉलो द स्लीप पैटर्न वो द मदर नेचर. जब हम सनराइज और सनसेट के साथ जो मैं बोल रहा हूँ, तो आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल कि सनसेट के साथ हमारा शुरू करेंगे. इसका और एक रीजन भी है कि हम जब अर्ली मॉर्निंग जब वेकअप अर्ली मॉर्निंग रहते हैं, तब अपनी बॉडी रिदम भी अच्छे रहते हैं एंड इट रिड्यूसेस स्ट्रेस ऑटोमेटिकली. तो मेरी आपको सबको रिक्वेस्ट है कि यू विल follow the rule of sun, the nature first. Second thing is, especially now I like to take some ages less than 5 years के बच्चे हैं, तो you need to have 2 hours extra sleep at least in the afternoon way. आफ्टरनून एनी टाइम इन फ्रॉम 10 बजे से 6 बजे तक दोपहर के वक्त 1-2 घंटे के अगर आपका बच्चा एंजॉय कर रहा है तो कंपलसरी करोगे तो आपकी नींद उड़ेगी, उसकी नहीं उड़ेगी. तो दोपहर के वक्त थोड़ी सी नींद, ये लेस देन 5 इयर्स अच्छा है. 5 to 10 इयर्स में एक नैप इज इम्पोर्टेंट. ये कभी कभी 5 to 10 ईयर में बच्चे के छोटे छोटे 2-3 नैप्स रहते हैं, ये भी अलाउ करने की चीज है. एंड नैप नीड नॉट बी ऑलवेज अ very sound sleep. It will be just 5-10 minutes and the child will again recharge and start playing. एक सबसे बड़ा दोपहर के स्लीप का एनिमी है वो स्क्रीन है. तो स्लीप अगर स्लीप रिदम सेट करना है तो स्क्रीन को दूर ही रखना है. और अनफॉर्चुनेटली घर पे बैठ के सबसे बड़ा क्या होने वाला है, तो हम सब डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि कोरोना से भी बड़ा एपिडेमिक बाद में आने वाला है एंड दैट इज द स्क्रीन एडिक्शन सिंड्रोम. तो ये स्क्रीन एडिक्शन का जो आगे आने वाला सबसे बड़ा पैंडेमिक रहने वाला है, वो चल जाने वाला नहीं है ऐसे मुझे लग रहा है. ये इसके बाद आने वाला. तो स्क्रीन से बच्चों को दूर रहो. स्क्रीन टाइम नॉट मोर देन 2 आवर्स. ये बच्चों के लिए कम से कम, आपके लिए और हमारे लिए भी, बट कम से कम बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरी, बच्चों को कभी कभी स्पेशली नाउ जहाँ पे एडोलेसेंस है 10 से 15 ईयर्स के बच्चे, वहां पे सरप्राइजिंगली स्लीप बढ़ जाती है. ये ध्यान में रखो कि बच्चे जब एडोलेसेंट में हो जाते हैं तो उनके जो हार्मोन्स रहते हैं वो हार्मोन्स को प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा नींद लगती है. तो बच्चे सो रहे हैं तो उनको जगाओ मत उनमें से, उनको लेट देम एंजॉय दैट स्लीप. यूजुअली देयर टाइम इज 10 to 13 आवर्स. ये एडोलेसेंट बच्चों के स्लीप का टाइम हो सकता है, इज मच बेटर देन स्क्रीन पे बैठना. पर ऐसा ना हो कि सो रहा है, खा रहा है, स्क्रीन पे जा रहा है, ये अवॉइड करो. तो स्क्रीन उसमें नहीं आना चाहिए. स्लीप और स्क्रीन एक दूसरे के एनिमी है. हाँ, चटपटी चीजें खाना ये स्लीप को डिस्टर्ब करती है, ये ध्यान में रखो. और एक्सेस लाइटिंग घर पे ये भी स्लीप को डिस्टर्ब करती है. और एक्टिविटी, कुछ काम किया, हाँ, कोशिश की, मम्मी को हेल्प की, तो सब्जी चुनने में मदद की मम्मी जी को, कुछ आलू कट करने में मम्मी को मदद की, तो ये स्लीप जल्दी आने वाली. आप देखो बच्चा बोल रहा है मैं सोने वाला नहीं हूँ, आप उसको काम करने को दो, वो तुरंत बोलेगा चलो मम्मी मैं सो जाता हूँ. So know these simple tricks, but make sleep time fixed. That will help you a lot. स्लीप के बीच पॉइंट बीच में बोल देता हूँ. प्लीज सी टू इट दैट आप सोने के पहले एक भी न्यूज चैनल ऑन मत करो. नींद के पहले कुछ भी न्यूज चैनल ऑन करना ये मेरे तरफ से सख्त मनाही है. ये अपनी स्लीप को पूरा खराब करने वाली है. या So that how do we manage the elderly population that we have at our home? All of us have that. In these pandemic, taking care of them and children is very difficult. So we've got a lot of questions. Yeah. I'm a pediatrician to see, and I really enjoy with children. But as a child to some parent, I can say a very different way. If we are together, and grandparents, parents, and children together, grandparents are nothing but, I will always say, yeah, like children. So उनके लिए भी the things remains, but उनका वैसे भी over 50 years नींद 1-1 घंटे से कम होने लगती है per decade. तो उनकी नींद कम होने वाले एक पार्ट है. और उनको मैनेज करते वक्त उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है, दे आर सोशल पीपल. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ग्रैंड पेरेंट्स का क्या रहता है, इन लास्ट 60, 50, 70 इयर्स
सबसे बड़ा उन्होंने क्या पाया है दुनिया में, पैसा नहीं है, दे आर गॉट मेनी पीपल टुगेदर, और यही उनको आज नहीं मिल रहा है। तो ग्रैंड पेरेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उनको बोलने को जी चाह रहा है। वो दे कैन नॉट गेट कनेक्टेड, उनको मिलने को अपने लोगों के साथ जाके चाय पीने का वो नहीं हो रहा है। वन ऑफ द बेस्ट वे इज यूज ऑफ टेलीफोन्स एंड दीज मीटिंग्स वेरी फ्रिक्वेंटली इन अ प्लान्ड वे। तो मेरे ही वन ऑफ द अश्विनी के मेरे फादर इन लॉ ने जो किया है, दे दे प्लान्ड हाफ एन आवर की टेलीफोनिक मीटिंग। तो ये सब वो और उनके दोस्त लोग टेलीफोन में एक दूसरे को पैच करके करते आधा घंटा प्लान करके हम 11 बजे, और सब अपने घर पे चाय पीते दिखाते, चलो भाई कैसे चाय पी रहा हूं, ऐसे करके दे आर एंजॉयिंग दैट टेलीफोनिक मीटिंग। आई रिक्वेस्ट द ग्रैंड पेरेंट्स टू गेट कनेक्टेड विद पीपल। लकीली अगर ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चे एक साथ है, सो आई ऑलवेज टेल कि मम्मी पापा को थोड़ी फुर्सत चाहिए, तो ये दोनों को एक साथ जोड़ दो। तो बच्चे को ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कुछ काम करने को बोलो। अरे अपने बुजुर्गों के जमाने में बच्चे को बोला जाता था कि चलो दादाजी के पैर दबाओ और उनको थोड़ा मसाज करो। ये आजकल उल्टे हो रहा है, दादाजी बच्चों के पैर दबाते रहते हैं। बट आई थिंक अगेन दिस इज अ टाइम टू रिबूट, रीस्टार्ट। तो लेट्स गेट दोज गुड आइडियाज। और मैं बोलता हूँ, ये बच्चों के पैर दबाने से उनका पैर दर्द कम नहीं होगा, लेकिन दिमाग से दर्द चला जाएगा। So connecting the grandparents and the children together is wonderful idea. So it will keep both of them busy. और दोनों husband wife को थोड़ा खुद के लिए टाइम मिलेगा। Sir, I will add one point here. So those grandparents जो भी उनके अच्छे skills रहते हैं, और वो जो skills रहते हैं उनको आप बोल सकते हैं आपके बच्चों को सिखाने के लिए, maybe 5 minutes, 10 minutes, but take it as a respite for you. Okay, some do good chanting of shlokas, some can do origami, some can do other things. So try to share their time together and give respite for yourself. Okay, so this can be one more idea. And daily जैसे वो लोग बोलते हैं बाकी लोगों से, वैसे आप भी आपकी फैमिली से जो भी पेरेंट्स है, इन लॉज है, वो दूसरे घर में रहे तो बी कनेक्टेड विद देम। ओके, दैट इज द ओनली थिंग एज वर्किंग विद द चाइल्ड सेटअप वी कैन से। उनके स्किल्स बच्चों को सिखाने का टाइम यही है कि दादी को कुछ, दादाजी को कुछ अच्छे तरह से योगा आ रहे हैं, तो दैट इज द टाइम दे शुड यूज दिस टाइम टू टीच द चिल्ड्रन। एंड ये दोनों के लिए, बच्चों को भी सीखना हो जाता है और दादा दादी को भी ये एंजॉयमेंट रहते हैं। एक ही उनका होने वाला है जिसके बारे में ध्यान रखेंगे कि नेचुरली उनका मूड जल्दी बिगड़ने वाला है, जैसे बच्चों का होता है वैसे ग्रैंड पेरेंट्स का होने वाला है। और मेरी यहाँ के मम्मी पापा को रिक्वेस्ट है कि ये एक्सपेक्टेड है, हम यंग एज में भी हमारे मूड खराब हो रहे हैं, हम स्ट्रेस में जा रहे हैं, तो दादा दादी क्यों नहीं जाएंगे उस स्ट्रेस पे। तो लेट्स टेक इट, एक्सेप्टेंस जो रहता है, हम इसको बोलते हैं एक्सेप्ट द पर्सन विथ हिज ओन प्रॉब्लम्स, एंड देन दैट विल हेल्प यू टू टाइड ओवर द स्ट्रेसेस मच बेटर। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah. So another question is that what do we do to, how do we prepare the children to come back out of this lockdown? Is it too early to talk about it? Should we pick it up in the next part? द बेस्ट वे इज स्कूल ओनली। आप मैडम, आप जो कर रही है, मेरी आपको रिक्वेस्ट है, शायद ये रिक्वेस्ट पेरेंट को खुश करने वाली है, आपको बहुत तकलीफ देने वाली है, कि आप हफ्ते में एक बार सब बच्चों के साथ स्कूल लेते ही रहो, छुट्टी मत दो उनको। हफ्ते में एक दिन के लिए आधा घंटा सबके साथ ऐसे जुड़े रहो, और वापस आने में बच्चों को तकलीफ नहीं होगी। हफ्ते में एक बार ये स्कूल चलाइए। ठीक है सर, I wanted to tell you that we did it as a part of the experiment last 20 days. School was on, all lectures were on, they were seeing the teachers. So we had a virtual Zoom party for them. Correct. And Correct. on the children, I think a lot of parents are logged in, was fantastic. The children were very happy in this last 20 days. So I think we may repeat the entire program till the lockdown is over and take care of that. मैं और एक रिक्वेस्ट करूंगा जिससे और आप आपके जो एंथुसियास्टिक पेरेंट्स है, अब ये नेक्स्ट छुट्टियों के दिन में पेरेंट को ये स्कूल चलाने को बोलो, थोड़ा पार्ट को। तो पेरेंट्स को आप सब पेरेंट्स को उनके स्किल सेट्स आपको भेजने को बोलो, और जो बच्चों के साथ दे कैन शेयर, and let them conduct a short session for the other kids, and that will get them together again. That social distancing हमें उल्टा करना है, physically distancing रखना है, mentally distance कम करना है. So this can really parents can get together and help this figure out.
हाँ आज मेरी मम्मी दूसरे बच्चों को सिखा रही है, ये उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड होने वाला है. Okay, sir. We मैम open forum, Batul. Put it on the microphone or on the chat if people want to ask questions, please. हेलो गुड इवनिंग प्रिंसिपल मैम आई एम अ पेरेंट ऑफ सुंदर जी Mehak's mother. I want to play group parent. I want to ask that which activities can be involved with parents to the children so that they know and they can be engaged with the grandparents morely and they can connect them. स्पेशली जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी बिट कम है, स्पेशली व्हेन इट वी आर कनेक्टिंग विद अ वाइड रेंज सीनियर सिटीजन टू बच्चा, ये जब रहता है तो वन ऑफ द वे इज ग्रैंड पेरेंट. एक वन ऑफ द एक्टिविटी मैं आपको बताता हूँ विच हैज वर्क वेरी वेल इन माय नेबर्स. इस ग्रैंड पेरेंट को वो बीच में बिठा देते, तो द ग्रैंड पेरेंट सिट्स इन अ चेयर इन द सेंटर ऑफ द रूम. And what they said that they thought of that the grandparent is like a sun, and the whole the hall was a universe, and then the child was moving around, so he is moving around like a earth, then the other child is moving around like a Jupiter, and they started playing around with the. So grandparent के आजू बाजू घूमना, उनको कुछ काम चीज देना, फिर हाइड एंड सीक जैसी चीजें. तो बीच में ग्रैंडपेरेंट एक क्लू देते हैं कि चलो भैया आपके घर में हमारे घर में जिसमें फूल रखते हैं वो चीज कहाँ पे. Then the child thinks, okay, the grandparent means to think about flower pot, and then the child goes searching goes to the flower pot, gets it to the grandparent. Grandparent says, yes, wow, you have done a good job, and that gives them a connection between both of them. So playing within the house, grandparent को एक जगह पे बिठा के बच्चों को उनके साथ कनेक्ट करना. इतना ही नहीं, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं और इसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग रहती है. चलो अपने पुणे में कौन सी नदियां हैं, एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ, ये जैसी चीजें रहती है. ये चीजें बच्चों को सिखाना भी, इंफॉर्मेशन भी रहती है, एंड ग्रैंड पेरेंट्स भी उसके साथ आते हैं. थोड़े बड़े बच्चों के लिए यू कैन यूज द मीडिया ऑल्सो. तो रामायण के कैरेक्टर्स, अभी रामायण टीवी पे बज ही रहा है, तो उसके ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स को उसके ऊपर का इंटरप्रिटेशन, तो फिर वो अपनी तरफ से बोलते हैं, एंड दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सर आई विल लाइक टू ऐड अ थिंग. जो बच्चे अभी ऑटिस्टिक नॉन वर्बल है, तो उनके लिए अगर आपको एक्टिविटीज चाहिए विद द ग्रैंड पेरेंट्स हेल्प, देन अगर ग्रैंड मदर घर में है तो जैसे कटिंग ऑफ द वेजिटेबल्स विद द व्हाटएवर नाइफ विच शुड बी सेफ एंड अंडर ऑब्जर्वेशन. देन सेकेंडली जैसे प्रेशर कुकर लगाते हैं उस टाइम पूरी बच्चे को हेल्प को लेने का ग्रैंड मदर के साथ, आटा भूनना, ये सभी चीजें फाइन मोटर स्किल्स को बहुत ही हेल्प करने वाली है. एंड दैट विल मेक योर चाइल्ड सिट फॉर सम टाइम and will connect with the grandmother. Okay, keep the activities minimum 3 minutes, 5 minutes, not more than that. Then one more thing, even the making roti can be helpful. Then take their help. Then grandmother के साथ जो folds बनवाते हैं बेडशीट्स वगैरह के, कुछ swing activity है simple, कुछ बटन लगाना है, all these things, because in fine motor skills बटन पार्टी वगैरह का यूज करते हैं. So ask the grandmother to teach such a simple skills to your child. Regarding the grandfather and also grandmother, they can teach the child. अगर उनको संस्कृत श्लोका है, आपके फैमिली के, आपके रिलीजन से कुछ श्लोका है, then they can chant. Keep them short, 3 to 5 minutes. स्टोरी टेलिंग जो भी सिंपल है, 3-5 लाइन की है, जितना आपका बच्चा बैठ रहा है उतना ही लीजिए. कलरिंग ड्राइंग एक्टिविटी, कोई ग्रैंडफादर आर्टिस्ट है, अगर उनको कुछ अच्छा लग रहा है वो सिखा सकते हैं. कोई ग्रैंड पेरेंट्स कंप्यूटर स्किल्स में है तो वो टाइपिंग, MS वर्ड, MS एक्सेल का यूज करवा के सिखा सकते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स विल जेल द ग्रैंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टुगेदर. थैंक यू सो मच मैम. एंड आई हैव वन मोर. मैं आप सबको और एक साथ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे. मैं आगे आई एम लुकिंग एट सो मेनी गुड पेरेंट्स टुगेदर, अगेन अ चैलेंज, एंड लेट सुंदर जी प्लेटफॉर्म फॉर दैट. मैं सब पेरेंट्स को एक चैलेंज दे रहा हूँ कि हर पेरेंट ने सुंदर जी के वेबसाइट पे, नहीं तो फेसबुक, जहां पे आप कर सकते हो, यू आर गोइंग टू गिव एटलीस्ट 5 एक्टिविटीज जो हम अपने घर पे कर रहे हैं. ये सब भेजना शुरू करो. इन अ वीक सुंदर जी में 150 into 5, 750 एक्टिविटी, उसमें से रिपीटेशन निकाल के 600 एक्टिविटीज का एक बड़ा सा कैटलॉग बन जाएगा. एंड मैडम वी शुड सेंड इट बैक टू एवरीबॉडी, एंड नाउ वी डोंट हैव प्रॉब्लम ऑफ थिंकिंग ऑफ एक्टिविटीज.
Sure, sir, it So will be that done. can be a good activity. हाँ, सबको एक होमवर्क दे दो कि हर पेरेंट ने 5 एक्टिविटीज दूसरों के लिए देने का है. Right, sir. We will take in one last question, sir. Yeah. One last question. If anybody wants to ask, we've got questions. We will put it across to sir, and maybe next time he can answer for them because we are running out of time. We've completed more than an hour. But before I end the show, we've got a few tips and hints for parents. Parents, please stay calm. Talk about it to your children, the COVID. Don't show them too much of news. I think only stay onto one channel. Talk little only what they understand. Be very empathetic. Make your house a very joyful atmosphere. Don't think it's a battleground. Validate their feelings. Their feelings are real. So whenever they want to ask you a few things, validate that. Talk to children, make them safe. Most important is safe corner in your house. Make them comfortable whenever you want to talk to it. Use social stories. Use chopsticks to show the feelings. I think that's the best way we can do a few things. And if you are under therapy, please check with your therapist if they can give you an homebound program. Stay connected, like Sir said, on video calls with other children, on Zoom, and even talking to them. And most important, take short breaks. Be kind to yourself. Use a lot of TikTok laughter video. So today I read a very nice quote which says, laughter is like an instant vacation for stress. So I think Yeah. that's what we need to do. And I leave you with one thought that one doctor at present was asked that, do I need a stress test? So the doctor said, life is a stress test at this moment. So you don't need any of the stress tests. Before I Yeah. end this session, I would like to thank Dr. Godbole, Ashwini ma'am. Both of you all were wonderful as usual. We are missing your Thursday session, but we are back with it. We will come back on every Monday and Friday with this webinar series. Till that time, keep the social distance, which is most important. Look what the government has to say, follow what our Prime Minister has to say, make our country a COVID free. We're looking at a COVID free country very soon. It may take time, but that's the only way out till we get a vaccine. Stay safe, be happy, and most important, let's look at a 7, 8, and 9 p.m. schedule for lights dim, dinner time, and lights off. I think let's go with the Prakriti and the body clock. I'm sure when we come back Friday, we will be stressed 50%. मेरा एक ही सेंटेंस बाद में, ये चला जाने वाला टाइम है, बहुत शॉर्ट टाइम है, जस्ट हैंग ऑन, टेक I केयर. think all will hang on and we come back to it. Thank you very much. Thank you for joining us. Lovely audience. We are very happy to have so many of one of us with us today.